Bismillahirrahmanirrahim. Basically, today we are going to discuss the recent updates of CPSP and along with the recent updates, something about the International Conference on Medical Education, which we are going to have on 13th and 14th January. मेरा interest surgery के अलावा is in medical education. This is your college. You can see the green lawns and the flowers, and we must pay tribute to this person, लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी, जो फाउंडर थे 1962। अगर कॉलेज ना होता तो शायद इस अंदाज में इस मुल्क को स्पेशलिस्ट ना मिलते। दिस इज मेन टॉपिक ऑफ टुडे। वी आर गोइंग टू हैव द इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑन 13 and 14th January. This is the detail of that conference and these are the partner of the conference. अब क्यों कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी? College of Physicians Surgeon has the proud tradition of holding the international conferences every year on scientific as well as on the medical education theme. This conference is being held after a gap. कोविड की वजह से 2 साल तक हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, तो अब ये कॉन्फ्रेंस हमने। और another tradition is to hold these conference in partnership with the international and national post graduate organization. मुल्की तिब्बी तालीम के इदारे कोलैबोरेट कर रहे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ which includes खैबर यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड, फातिमा जना, और इंटरनेशनली एक कॉलेज मेन होता है जो जॉइंट पार्टनरशिप पे आता है, और इस मरतबा कॉलेज ऑफ मेडिसिन ऑफ साउथ अफ्रीका है जिनके साथ हमारी जॉइंट पार्टनरशिप है। और इस कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स क्या होंगी, हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कराची जाके भी, एंड यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट वाइल सिटिंग एट दीज सेंटर, because all these centers they will be connected with the headquarter, और जितने lectures और तमाम workshop होंगी they will also be displayed at the different center. So eminent international national speaker are expected to participate in the conference, और इसके अपने credit hours होंगे, और credit hours जो हैं आपको पता है कि हमारी जितनी educational activity हैं, American accreditation जो इनसे है medical education का, उससे accredited. Pre-conference workshop they will start from 9th to 11th January, और ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में होंगी, कराची में भी होंगी, चारों सूबों के डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनमें होंगी, और टॉपिक्स जो होंगे वर्कशॉप के वो डिफरेंट होंगे। एंड दीज टॉपिक दे विल इंक्लूड दी इनोवेशन इन द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, MCQ बैंक, वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द क्लिनिकल असेसमेंट, सोशल अकाउंटेबिलिटी। इनमें कुछ पे वर्कशॉप होंगी और कुछ पे हमारे लेक्चर्स होंगे। प्री कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस इसका शेड्यूल, प्री कॉन्फ्रेंस द वर्कशॉप, और कॉन्फ्रेंस जो 13th और 14th की होगी। 13th को हमारे बेसिकली इनाग्रल सेशन के साथ की नोट लेक्चर्स, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड इन द डेवलपिंग कंट्री, एंड देन देयर विल बी अ सिम्पोजियम ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस the variation in the quality of training, how we can do the effective monitoring. और second day पे there will be a multiple parallel sessions, और ये तमाम session जो हैं they are also will be displaying these session to the regional center too. और इसमें जो theme होगा that relates to the clinical training both on the medical side and the dentistry side. Now this is your current council, and you all know the council that is elected by you people, and there is a distribution provincial from one province, second, third and fourth, and representation from armed forces. और बेसिकली काउंसिल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉलेज की करंट कंट्रीब्यूशन जो है, द नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट दे आर अराउंड 44,000 currently, and 32,000 plus they are the fellows, 11,000 plus they are the member, and college currently is having the maximum number of the postgraduate program 79. When we started in 2007, the total number of postgraduate program they were 54. अब 79 है, इसमें 40 plus are the first fellowship program, they are a 4 to 5 year, then there are second fellowship program, for example rheumatology, endocrinology, and recently we have included transplant surgery too, and we have got 22 membership program, and then MCPS HPE and for hospital management. Now I have already mentioned we have got the tradition of holding the international conferences. This conference we had in 2012,
and you can see the flags of various countries. More than 20 presidents of the Royal Colleges and their representatives, they participated in 2012 Charter Day celebration, Golden Jubilee ceremony of College of Physicians Surgeons. Or on the same occasion, we have the joint conference with the Bangladesh College of Physicians Surgeons, क्योंकि 62 में दोनों कॉलेजेस एक ही थे और बाद में फिर सेपरेट जब हुए तो अगेन दे आर द सिस्टर कॉलेजेस. और जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई दैट वाज इन लाहौर, और इसमें CPSP एक साइड पे, BCVSP दूसरे साइड पे, और इस मौके पे वी हैड द वेरियस सेशन. और इन वेरियस सेशन के मौके पे वी हैड आल्सो द कॉन्वोकेशन, एंड द कॉन्वोकेशन वाज चेयर एट दैट टाइम द चीफ मिनिस्टर. उसमें इंडिया और सार्क रीजन के बाकी लोगों की नुमाइंदगी थी. और जॉइंट कॉन्फ्रेंस की पार्टिसिपेशन CPSP की पाकिस्तान और CPSP के अपने वेन्यू पे तो है ही है. इंटरनेशनली वी आर आल्सो होल्डिंग द जॉइंट कॉन्फ्रेंस. द फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ सऊदी अरेबिया इन 2011 was with the collaboration of College of Physicians in Pakistan, and chief guest of that conference was the president CPSP, and I was the keynote speaker on the e-log system of CPSP. वो नहीं थी एक किस अंदाज में we have introduced the innovation in the monitoring, and similarly the 5 president of the Royal Colleges, they participated, including Professor Ian Gilmore and other. Then we had various meeting with the Saudi Health Council for Specialists on various topic. इसी अंदाज में कनाडा में मेडिकल एजुकेशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल इवेंट होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेटर लीडरशिप फोरम. 2008 से वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग, और जब इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो वी लर्न समथिंग न्यू एंड वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग इन आवर ओन वे. वी डोंट कॉपी देम, लेकिन एक कंसेप्ट लेके आते हैं एंड देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन आवर सेटअप. ये दीज आर द प्रेजिडेंट्स ऑफ वेरियस इंटरनेशनल कॉलेजेस उस कॉन्फ्रेंस में. एंड देन फैमिली फिजिशियन और फैमिली मेडिसिन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कोलैबोरेटिव मीटिंग और कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुई, और रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया, रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर, इनके साथ हमारी कोलैबोरेशन to strengthen the family medicine program. तो इस वक्त there are 2 program, one in the Ireland and second is in the UK. Junior fellowship program and the senior fellowship program. Junior fellowship program, your training, they do part 1, they do 2 years of training, they do the formative assessment like intermediate module examination से through होने के बाद English में उनका score IELTS OET में 7+ होना चाहिए, and then we expose them to the good training environment of UK and Ireland, those institutions which are recognized by the Royal Colleges, और ये training that is accredited by the CPSP and their own Royal Colleges, और इनकी local limited registration होती है, 2 साल के लिए काम करते हैं, and compulsorily they have to come back. यहाँ पे in Ireland हमारी डिग्री भी मानी जाती है in some specialties, और accreditation of भी ट्रेनिंग भी है. डेंटिस्ट्री में आप यहाँ ट्रेनिंग करके जाएँ, और उस ट्रेनिंग के साथ, इस क्वालिफिकेशन के साथ you can directly appear in their fellowship examination. इसका 510 trainees they are working in the Ireland, और ये उनकी तफसील है कि we started this scheme in 2011 और पहला बैच 2013 में गया, और तकरीबन 50 के करीब लोग जाते हैं आफ्टर एवरी 6 मंथ, और 49 इस साल के जो फर्स्ट हाफ में वो गए. एंड दिस इज़ द डिटेल ऑफ 510. वी स्टार्टेड विद 8 डिसिप्लिन एंड नाउ in 13 different disciplines our postgraduate resident they are going. Now this e-portal or e-log is the innovation of College of Physicians Surgeons Pakistan. इसमें आप लोगों के पास ID पासवर्ड होगा, या जब सुपरवाइज़र आपको मिलेंगे तो आपको ID पासवर्ड मिलेगा. इसी तरह 35,000 ट्रेनी they are having the ID and password, and this is a sort of 360 degree monitoring with the feedback. और ये CPSP की अपनी इनोवेशन है. जिस फोरम पे भी मैं गया हूँ, CPSP e-log system has been appreciated. May it be the Australia, may it be the Canada, और अभी साउथ अफ्रीका भी जब हमने बात की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की e-log सिस्टम की, they highly appreciated this innovation of medical education of CPSP. स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग रेगुलर होती है आयरलैंड. ये मीटिंग ऑलरेडी आयरलैंड में हो रही है. रॉयल कॉलेज के प्रेसिडेंट और उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, और बात e-log की हो रही है. और एंड पे LS McGorman जो उनकी चीफ ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की प्रेसिडेंट एक्स, वो लिख रही हैं
Dear Professor Gondal, I wish to let you know about your response of e-log system. My colleague here in NDTP along with our training body colleague were hugely impressed. They all are saying we should introduce something similar. मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक इदारा ट्रेनिंग को यूनिफॉर्म मॉनिटर भी कर रहा है और वेरिएशन ऑफ ट्रेनिंग को एड्रेस भी कर रहा है. That could be used for all the training body here. At present, all training body use a different system, so they cannot talk to one another. They all ask me to pass on to their congratulation to you and the college. तो ये एक अच्छी बात है. ये मुबारकबाद सिर्फ काउंसिल को नहीं है, ये आप सब को है, फेलोज़ को है, सुपरवाइज़र को है, ट्रेनी को है कि जिन्होंने इस प्रोग्राम की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले किया. These are the junior and senior fellowship program. Junior fellowship basically जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त और IELTS होना चाहिए. सीनियर फेलोशिप जब फेलोज़ हमारे फेलोज़ ने कहा, जैसे आपके कोलीग्स हैं कि जी आप उन लोगों के लिए तो प्रोग्राम आपने थ्रू किया जो इसका ट्रेनिंग के प्रोसेस में, व्हाट अबाउट फेलोज़. तो फिर हम सीनियर फेलोशिप प्रोग्राम लेके आए कि FCPS के बाद यू कैन गो टू UK इन 30+ डिसिप्लिन फॉर 2 years और उनकी अर्निंग बिल्कुल उतनी है जो अपने बच्चों को वो देते हैं 5 से 7 लाख रुपया. एंड दिस इज़ हाउ द इंटरव्यूज़ दे आर गोइंग ऑन. ये लास्ट इंटरव्यू है 2022 के इंटरव्यू का तरीक़ाकार ये है कि वो जितनी सीट्स उनके पास वेकेंट होती हैं, दे सेंड देम टू अस. हम वेब पे डालते हैं, CVs आते हैं, वी सेंड द CVs टू दोज पीपल. वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, एक सीट के अगेंस्ट 3 लोगों का इंटरव्यू होता है and this direct selection by them. there's absolutely no role of the college. और फिर ये बच्चे 2 साल के लिए जाते हैं. बाज़ का तो फिज़िकल आ जाते हैं, कोविड की वजह से वीडियो कनेक्टिविटी के साथ इंटरव्यू रहा. सो आई हैव टोल्ड यू कि बर्मिंघम में हमारा आयरलैंड में 510 है, UK में देर आर 386, जिसमें बर्मिंघम में 241 और बाकी वाल्सा, लीड्स, हल एंड योर्कशायर एंड डडले, इनमें आर ट्रेनी दे आर वर्किंग. And here the number of specialty, they are more than 30. And then internationally world ने WHO ने इस स्कीम का नाम दिया ब्रेन गेन एंड नॉट द ब्रेन ड्रेन, क्योंकि ये वो बच्चे जो जाते हैं ये कंपल्सरीली वापस आते हैं, पाकिस्तान को सर्व करते हैं. सो द नेम गिवन वाज ब्रेन गेन, और इस अंदाज में कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, सीख के वापस आते हैं. बच्चों का फीडबैक ये था कि हम अच्छे इन्वायरमेंट में काम करते हैं और गुड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंसेंटिव और फिर एथिकल प्रैक्टिसेस, प्रोफेशनलिज्म हम सीखते हैं. तो वहाँ से सीख के आके अपने इन्वायरमेंट में आके और अपने मुल्क में आके प्रैक्टिस करते हैं. फिर ये कॉलेज का सपोर्ट सिस्टम, इसमें 2007 के बाद कोयटा सेंटर नया, हैदराबाद सेंटर नया, एबटाबाद सेंटर नया, बहावलपुर सेंटर नया, ये नए सेंटर बने. अभी रिसेंटली गिलगित बिल्तिस्तान में हमने सेंटर नया बनाया. ये नए सेंटर्स जो सारे बने, इन तमाम में और इसके साथ मुल्तान सेंटर, पेशावर सेंटर, लाहौर सेंटर, कराची सेंटर, इन तमाम को एक्सपेंड किया, न्यू कंस्ट्रक्शन की, विदाउट इंक्रीजिंग अ सिंगल पेनी फीस. ये आपकी जो फेलोशिप और जो वर्कशॉप की फ़ीस है, इसके पैसों में वो बरकत थी कि नए सेंटर भी बन गए, वीडियो कनेक्टिविटी भी हो गई. All these centers they are connected with the video conference which we are using for the faculty meeting. और इन तमाम की जो डेवलपमेंट के बावजूद by the grace of Allah Almighty, the college is in a position now कि अगले 4 साल तक भी वर्कशॉप और एग्जामिनेशन की फ़ीस ना भी बढ़ाएं तो कॉलेज इज़ कम्फर्टेबल. $49 पे जब डॉलर था, 49 पे, तो उस वक्त, और अब डॉलर 200+ है, और इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि 8 नए सेंटर बना दिए और अगले 4 साल तक फिर फीस नहीं बढ़ेगी इंशाल्लाह, और अभी आगे डेवलपमेंट आपको बताएंगे. एंड दिस आल्सो अगेन अ गुड न्यूज़ कि सऊदी अरब, नेपाल में हमारे सेंटर थे. सऊदी अरब में FCPS के साथ स्पेशलिस्ट, कुछ तजर्बे के साथ कंसल्टेंट. नेपाल में इस वक्त आपकी क्वालिफिकेशन इज़ द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन. वी हैव स्टार्टेड कॉन्वोकेशन ओवर देयर. और अब एक वक्त था कि UK, आयरलैंड वाले पाकिस्तान में आके इम्तिहान लेते थे. वी हैव स्टार्टेड एग्जामिनेशन इन द UK एंड द आयरलैंड नाउ. वी हैव गॉट अ न्यू सेंटर जो कि बर्मिंघम में बना, और बर्मिंघम सेंटर पे इम्तिहान भी शुरू हो चुका. बच्चों को अब UK, आयरलैंड से पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है.
we will take their examination there at the doorstep. College के examination इसका 284 के करीब हो रहे हैं, and we are trying to maintain the transparency and merit in these examination. और एक और innovation, that is the online examination. Part 1 हमारा online, intermediate module online, और Part 2 in some specialty that is online. और ये examination की picture कब की है? 2 दिन पहले. और ये जब हम present कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उस दिन इम्तिहान का सेकंड लास्ट डेज था. CPSP यूके सेंटर में इम्तिहान ऑनलाइन हो रहा, और जो नए सेंटर हमने इंट्रोड्यूस किए इस मरतबा, दैट इज़ बहावलपुर सेंटर, एबटाबाद सेंटर एंड हैदराबाद सेंटर. दीज 3 न्यू सेंटर दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन. और इसकी ब्यूटी ये है कि कराची लाहौर बैठ के आप मॉनिटर कर सकते हैं जिनके पास पासवर्ड है, और अपने मोबाइल पे भी मॉनिटरिंग और ऑनलाइन एग्जामिनेशन. आई थिंक विद दिस मच नंबर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट किसी और मुल्क में इस अंदाज में इसकी एग्जाम्पल नहीं है. ये वो है असल दिन कि जब 14 अगस्त का दिन 14 अगस्त 2022 और बर्मिंघम का सेंटर इनाग्रेट किया जा रहा था. पाकिस्तान के लोग, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ के गवर्नर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रॉयल कॉलेजेस, दे ऑल वर देयर. मेयर वहाँ पे मौजूद था. और उस वक़्त हमने भी कहा नहीं, आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए और पाकिस्तानी लिबास होना चाहिए. और ये CPSP बर्मिंघम सेंटर को हम इनाग्रेट कर रहे हैं. और फिर ये उस सेंटर पे हमने कि वी हैव स्टार्टेड एग्जामिनेशन एट दैट सेंटर. नेपाल सेंटर पे एग्जामिनेशन इज़ रेगुलरली गोइंग ऑन. नेपाल पे हमने कॉन्वोकेशन कराई. और अब ये दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आम तौर पे फेलोज़ ये पूछते हैं कि व्हाट अबाउट आर कॉन्वोकेशन. कोविड की वजह से जो डिले हुआ, वी आर गोइंग टू हैव 3 कंसेक्टिव कॉन्वोकेशन. हैदराबाद की कॉन्वोकेशन 4 दिसंबर, फैसलाबाद की कॉन्वोकेशन 18 दिसंबर, लाहौर में कॉन्वोकेशन 26 एंड 27 दिसंबर को हो रही है. और इसी तरीके से कराची की कॉन्वोकेशन हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगी, दैट इज़ ऑन 12 जनवरी. नाउ कमिंग बैक टू आवर रिसेंट मीटिंग विद द कॉलेज ऑफ मेडिसिन ऑफ साउथ अफ्रीका. और इसमें हमारे क्या उनके साथ बात हुई, ये प्रोग्राम तमाम की डिटेल है. इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोग्राम उन्होंने इशू किया, इसमें एक तो कॉलेज ऑफ मेडिसिन साउथ अफ्रीका है. हमारा कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के अंडर 76 प्लस फैकल्टीज़ हैं. तो फैकल्टीज़ के बजाय फिर आगे कॉलेज के नीचे मिनी कॉलेजेस, डिफरेंट स्पेशलिटी के कॉलेज, दे आर हैविंग अराउंड 29 कॉलेजेस. तो उन्होंने तमाम कॉलेजेस के प्रेसिडेंट, और उनका मेन जो प्रेसिडेंट है, मेन प्रेसिडेंट इज़ प्रोफेसर जॉन फैगन, और प्रोफेसर फ्लेविया इनकी पास्ट प्रेसिडेंट थी. दे ऑल वर देयर. और जो मीटिंग की तफसील हैं, इसमें 3 डेज़ हेक्टिक मीटिंग रही. कि फ़र्स्ट डे पे जब हम गए तो पाकिस्तानी डॉक्टर जहाँ काम कर रहे हैं, दे वर वेरी हैप्पी टू सी कि 32 साल के बाद, आज से 30-35 साल पहले हमारे डॉक्टर वहाँ गए एंड दे आर इन गुड पोजीशन. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई डेलीगेट आया है हमारा हाल चाल पूछने. तो देन दे हैड द डिनर इन द ऑनर ऑफ दिस डेलीगेट. और इसमें हमारे जो लोकल एम्बेसडर हैं, दे वर आल्सो देयर. और हमने जिन प्रिंसिपल्स पे उनसे बात की, उसमें पहले रेसिप्रोसिटी कि आप हमें मानेंगे, हम आपको मानेंगे. एक्रीडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड रेसिप्रोसिटी ऑफ द प्रोग्राम. सिमिलरली एक्रीडिटेशन के साथ एक्सचेंज ऑफ एग्जामिनर. आपके सिस्टम में हम इम्तिहान लेंगे, आप हमारे सिस्टम में देखें, दोनों कॉलेजेस के सिस्टम आप देखें. एंड देन कोलैबोरेशन इन द क्लिनिकल रिसर्च. ये जब पहली मीटिंग हमारी इनके साथ हुई, इसमें दोनों प्रेसिडेंट्स ने, प्रेसिडेंट कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन और प्रेसिडेंट कॉलेज ऑफ मेडिसिन साउथ अफ्रीका, ओवरव्यू प्रेजेंट किया गया ऑन द फर्स्ट डे. इसके बाद सेकेंड मीटिंग जो हमारी हुई, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, उनमें फिजिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ, इस पे डिफरेंट हमारे जो काउंसलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात की. नेचुरली उन्होंने भी बात की. और जॉइंट कॉन्फ्रेंस के बारे में प्रोफेसर आमिर जमान साहब ने वहाँ तफसील बयान की और उनसे उनको इनवाइट भी किया. और इनविटेशन में उनके की नोट स्पीकर, उनको हमने इनवाइट किया. इसी तरह सेकंड टॉपिक पे बात की, सिंपोजियम पे बात की, और जो टॉपिक हैं वी शेयर्ड विद देम एंड दे आर गोइंग टू हैव द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑन आवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. इसके बाद फिर वहाँ भी हमारी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं. नेक्स्ट मीटिंग हमारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और उन तमाम डीन से मीटिंग हुई. दीज आर द वेरियस डीन्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली द फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज.
पब्लिक हेल्थ। हमारे यहाँ जो फैमिली मेडिसिन सिस्टम है वो वीक है, एंड वी हैव लर्न द फैमिली मेडिसिन सिस्टम, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर फ्राम दोज पीपल। उनका जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज हैं दे आर बेटर, और यहाँ पे उनके वो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस पे जब हमने विज़िट किया, एंड वी थॉट वी शुड हैव द सिमिलर टाइप ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एंड द फैमिली मेडिसिन प्रोग्राम। This was related to the community health center and strengthening of family medicine system of Pakistan। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये था। स्टीव बीको एकेडमिक हॉस्पिटल, आपको पता है कि जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और फिर हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट पूरी दुनिया में हुआ, ये कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में। तो टेक्नोलॉजी में और ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी में दे आर, उनकी डेवलपमेंट बहुत बेहतर है। इस हॉस्पिटल को हमने देखा, शी इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ दैट हॉस्पिटल। और देन वी हैव मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, जिस तरह हमारी PMDC है इसी तरह उनकी रेगुलेटरी बॉडी है, और उनके प्रेसिडेंट के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे हमारी बात हुई। और उसके बाद थी एडवांसेस इन द एजुकेशन बाय कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन। इसमें जिस तरीके से आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से मुझे मौका मिला, और कॉलेज की जो एडवांसेस है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस बात को तस्लीम किया कि CPSP perpetual is going towards and adopting all the advances. For example, I discussed with them the challenges of postgraduate medical education और CPSP strategies to cope with those challenges. हमें चैलेंज था शुरू में, इंडक्शन का हमने ट्वाइस कर दी। चैलेंज था कैरिकुलम का, कैरिकुलम फैकल्टी रिवैम्प कर दिया। मॉनिटरिंग का था, ELOC सिस्टम ले आए। इवेल्यूएशन में वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो वी हैव एड्रेस ऑल दीज चैलेंजेस gradually with the help of you people, with the help of people sitting there। और इस वक्त कॉलेज का जो competency based medical education है, it's like CANMED, it's like ACGME competency। इस वक्त we are trying to match instructional strategies with the curriculum, with the monitoring and variation of monitoring that been addressed through the ELOC system। और evaluation में innovations आ रही हैं, table of specification, cognitive domain, affective domain, और इसी तरीके से जो साइकोमोटर स्किल हैं उनके लिए आगे जो टूल्स हैं, कौन सी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं थ्योरी पेपर में, और कौन सी टॉक्स में, कौन सी लॉन्ग और शॉर्ट केस में, इन तमाम को हम मैच करने की कोशिश भी करते हैं। और जब आपको सुपरवाइज़र बनाएंगे तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, और कर भी दी होगी, कि आप 50 MCQs अपना कंट्रीब्यूट करें कॉलेज को, ताकि कॉलेज का MCQ बैंक जो है वो स्ट्रेंथन होता रहे। सो वी डिस्कस विद दीज इनोवेशन। यहाँ एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 35,000 प्लस ट्रेनिंग, 4,000 प्लस सुपरवाइज़र, हर एक के पास ID पासवर्ड, हाउ यू आर मॉनिटरिंग। आई डायरेक्टली कनेक्टेड माई लैपटॉप टू द कराची, और मैंने कहा ये 35,000 ट्रेनिंग है, किसी एक का नाम लें रिकॉर्ड सामने आएगा। 4,500 सुपरवाइज़र हैं, किसी एक का नाम लें सब रिकॉर्ड सामने आएगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि पोर्टल में इस अंदाज में हमारी प्रोग्रेस नहीं है, एंड देन दे रिक्वेस्टेड टू शेयर योर पोर्टल स्ट्रेटजी और सॉफ्टवेयर, और कॉलेज को हेल्प करें इन द डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल। तो इस अंदाज में डिफरेंट चीज़ों पे जो कोलैबोरेशन हो रही है, कुछ हम ले रहे हैं और कुछ दे भी रहे हैं। CPSP हैज़ गॉट मैनी थिंग टू कंट्रीब्यूट टू, और इसमें मैं ये समझता हूँ हमारी फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से जो जितने उनके डील्स हैं, उनकी मीटिंग में वेरियस टॉपिक दैट वाज डिस्कस। इसमें उनके जो डीन्स हैं, ही डिस्कस्ड इनोवेशंस इन असेसमेंट, और हमारे इसी तुम्हारी तरफ से भी इनोवेशन इन असेसमेंट में बात की गई। और असेसमेंट की इनोवेशंस में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ्यूचर में होने जा रही है, दैट इज़ वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट। क्योंकि कोविड के दिनों में उन्होंने इम्तिहान तमाम वर्चुअल कर दिए, एंड CPSP ने वर्चुअल नहीं किए। आप सुपरवाइज़र हैं, जब आप पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट आपका नहीं होता, आप ऑनलाइन इम्तिहान ले रहे होते हैं, तो आप कैसे एम्पैथी, सिंपैथी, प्रोफेशनलिज्म चेक करते हैं? आप कैसे पेशेंट को कहेंगे लंबा सांस लेके रोक लें? जब आप पेशेंट से बात करते हैं, हाँ जी आपका क्या नाम है, तो बॉडी लैंग्वेज और उसकी अपनी लैंग्वेज, दीज टू आर डिफरेंट। यू कैन असेस फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज कि यस इसमें एप्टीट्यूड भी ठीक है, प्रोफेशनलिज्म भी ठीक है, एथिकली ही इज़ फिट। तो हमने कहा कि नहीं, पेशेंट टू पेशेंट कॉन्टैक्ट जो वो रहना चाहिए। हाँ, ये बात तय हुई कि वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट इज़ द फ्यूचर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ताकि आप थ्रू आउट द ईयर्स उसको मॉनिटर कर सकें। सिर्फ 1 या 2 घंटे जो इम्तिहान के हैं, सिर्फ उसमें असेसमेंट ना हो। और इसके बाद फिर फैमिली मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन। एमरजेंसी मेडिसिन इज़ अ न्यू स्पेशलिटी पाकिस्तान में। आपको पता है कि जब मैं किंग एडवर्ड में वाइस चांसलर था, तो केई में वी स्टार्टेड दी एमरजेंसी मेडिसिन,
फैमिली मेडिसिन की ऑलरेडी मैं चेयर क्रिएट करके आया, वैसे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, बट वी नीड टू हैव द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन इन एवरी इंस्टीट्यूशन एंड वी नीड टू हैव द डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन इन एवरी इंस्टीट्यूशन। अभी प्राइवेट आर्म फोर्सेस में है, पब्लिक सेक्टर में ये बहुत कम है, बट वी हैव लर्न्स दीज थिंग फॉर देम कि किस अंदाज में फैमिली मेडिसिन सिस्टम को और फैमिली मेडिसिन स्पेशलिटी को डेवलप करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमने उन्हें बताई और कुछ चीज़ें हमने उनसे सीखी। ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द फैमिली मेडिसिन कॉलेज ऑफ साउथ अफ्रीका। इसी तरीके से फिर आगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात आई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इसमें वी शेयर्ड आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद देम। इसमें प्रेसिडेंट के बाद काउंसिल के बाद तमाम डिफरेंट डिपार्टमेंट, और इसमें जनरल साहब ने प्रेजेंटेशन दी CPSP की एंड वी लिसन टू देम, और दोनों इदारों ने एक दूसरे से इस्तिफादा किया। कंक्लूडिंग सेशन में उनके तमाम कॉलेजेस के प्रेसिडेंट और हमारी काउंसिल के तमाम मेंबरान मौजूद थे। एक्सचेंज ऑफ सोवनियर हुआ और वो खुश थे। और सच्ची बात है, उनके प्रेसिडेंट ने ये बात की कि जी मुझे नहीं पता था कि बर्रे सग़ीर में, पाकिस्तान में कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन इस अंदाज में मौजूद और इस क्वालिटी के साथ अश्योर कर रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। आई नेवर न्यू, ही सेड दिस थिंग। हमने कहा जी सीइंग इज़ बिलीविंग। जनवरी में आएँ, आके देख जाएँ, पार्टिसिपेट करें इन द एग्जामिनेशन ऑफ CPSP। जब तक आप बताते नहीं दुनिया को उस अंदाज में पता नहीं चलता। सो दिस वाज वन ऑफ द मीटिंग जिसमें साउथ अफ्रीका भी इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ऑल्दो दे हैव गॉट द गोल्ड माइन एंड मेनी अदर थिंग्स, लेकिन ये कि एक अच्छी मीटिंग कोलैबोरेशन की हुई। और ये उनके जो प्रेसिडेंट हैं जॉन फेगन, वेरी स्माइलिंग पर्सन, एंड पे ये उसके एक दो रिमार्क्स हैं जो आपके कॉलेज के बारे में और आपके लिए मैसेज है उनका। Yeah, well, certainly. What I'd like to say as the president of the College of Medicine of South Africa is that I believe we got lots to benefit from your experiences, your expertise, and we look forward to building on these relationships. And I look forward to my visit to your country, so I can learn more firsthand about how you educate and practice medicine. And I just wish you well for the future, because I think you're on the right path. But we'd like to walk that path with you, because I think we've got so much to gain, hopefully, so we should be highly impressed. And so mine has been a very positive experience. तो जो हमारी कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ जितनी हैं, दे हैव गॉट द एक्रीडिटेशन फॉर अमेरिकन काउंसिल ऑफ कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, ACCME के इसके अपने पॉइंट्स होंगे, और आप में से भी जो पार्टिसिपेट करेगा उसके अपने पॉइंट्स होंगे। और CPSP की फ्यूचर विजन जो हमने शेयर की उनसे, CPSP to be recognized as the international training and advisory center in the world. CPSP has justified its claim to be the pioneer and custodian of postgraduate medical education both within the country and abroad. CPSP through standardized training, 360-degree monitoring and feedback too, in transparent assessment system, quality research and implementation of competency-based medical education is committed to provide the world-class quality health services to the ailing humanity. And this is important slide जो हमने उनसे शेयर की। CPSP's greatest strength is not the example of the power, but the power of our own example. We believe in our own, कहते हैं ना, खुददारी है और खुददारी बता क्या है। Thank you and thank you very much.